ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ BSF ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ नहीं जी। बहुत लोगों ने धोखे भी दिए हैं, बहुत लोगों के धोखे भी खाए हैं, और धोखे खा के अकल आती है। सही गल है। घी खा के चना खा के अकल नहीं आती, धक्के खा के धक्के खा के आती है, बादाम खा के अकल नहीं आती। बस जी इसे 30,000 रुपए पकड़ लो। 30,000 में? हाँ जी, इतनी सस्ती दे रहे हैं आप? भाई जी ऐसी सस्ती माल देंगे हम लोगों को, फसान देने बिल्कुल जो माल के रेट है वही रेट देंगे माल। जे मंडी से चाहिए जे अपने तो कोई बोर मांगे भी अपन बोर भी दे देंगे। हाँ जी बोर भी दे देंगे, बोर के बच्चे भी तैयार कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, बाहर से मंगाए हैं बोर, हमने बोर की फीमेल भी मंगाई, इंपोर्ट करे हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 24 ਕਬੂਤੀ ਪੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ BSF ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 100 ਨਗ ਆਉਂਦਾ ਆ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 5 ਨਗ 5 ਕੈਬਨ ਇਸ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਆ, 5 ਹੀ ਉਹਦੇ 500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। 500 ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कम से कम 16 साल हो गए हैं पंजाब आते आते जी। और 16 साल में मैंने बहुत पहले शुरू में पिकअप लेके आता था, मैं कोई 40 से 45 नग लेके जाता था जी। 16 साल पहले, यानी कि 2005 या 2006 से मैं आ रहा हूँ। ये 42 हाइट है जी इस बकरी की। हाँ जी, ये बकरी की कीमत कहने को लोग 1.5 लाख बोल देते, 2 लाख बोल देते, लेकिन हमारे पास 60,000 रुपए कीमत है। 60,000? हाँ जी भाई जी, बकरी कम से कम मैं 500 बकरी हर महीना पंजाब से बाहर भेज देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा अपने YouTube चैनल ਅਤੇ Facebook पेज ਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗਿੱਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ जी वालेकुम सलाम नज़ीर भाई जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और किस तरह भाई जी सेहत ठीक ठाक? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है भाई आप भाइयों की, अल्लाह का शुक्र है एकदम बिल्कुल फिट है। आप लोगों भाइयों का दुआ है, प्यार है, जो दोबारा ज़िंदगी मिली भाई मुझे। ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਲ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਖਾਸ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 3 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ 2 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ BSF ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ BSF ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਥੈਰੋਬ੍ਰੈਡ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾੜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਘੋੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 8-10 ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਣਦਿਆਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 15 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 25 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 400-450 ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਆ, ਭੇਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ 300 ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਜਲੀ ਭੇਡ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਰਾਨ ਤੇ ਆ ਭੇਡ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂਗੇ? भाई पहली बार तो सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। भाई मेरे को कम से कम 16 साल हो गए हैं पंजाब आते आते जी। और 16 साल में मैंने बहुत पहले शुरू में पिकअप लेकर आता था, मैं कोई 40 से 45 नग लेके जाता था जी। 16 साल पहले, यानी कि 2005 या 2006 से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। 2006 से करीब करीब आ रहा हूँ मैं। और पहले पिकअप में आता था, 40-50 नग लेके जाता था। फिर उसके साल 2 साल के बाद उतने बड़े पैमाने पे काम करा मैंने कि मेरे 300, 350, 400 नग हर महीने, बोले तो 15 दिन में, महीने का भी छोड़ दो, 3 गाड़ी मेरी हर महीने 15 दिन में निकलती है ਜੀ जी। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? भाई मेरा मज्जा का भी काम है, मज्जा का काम करता हूँ मैं, बीच बीच में ऑर्डर देता हूँ मज्जा का। बड़ी मज्जा रहेंगी किसी की, जैसे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाली मज्जा जो रहती है उसका भी ऑर्डर देता हूँ। लेकिन मेरा जो बीटल बकरी का है 16 साल से मज्जा का और बीटल का ही काम है, सबसे बड़ा बीटल का काम है मेरा। ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? मज्जा बोले तो अपना मुर्रा, बाहर स्टेट में मुर्रा बोलते हैं, लेकिन सब पंजाब से ही मुर्रा निकलता है। जी। क्योंकि जितना पंजाब से बकरे ये है, भैंस है, मंज है, वो सब पूरा पंजाब से ही निकलता है। बड़ी मंडी सब, हरियाणा में कोई मंडी नहीं है, सब बड़ी बड़ी मंडी पंजाब के अंदर ही है। खन्ना मंडी, जगरावा मंडी, मोड़ मंडी, रामपुरा मंडी, धनौला मंडी, ये सबसे बड़ी बड़ी मंडी है। तो सबसे बड़ी बड़ी मंज इधर ही आती है, यहीं से हमेशा मंज लेके जाते हैं। और हमारे दादा परदादाओं से, चाचाओं से सब यहीं से पहले बड़े बैल जाते थे 25 साल पहले, 30 साल पहले खेती के लिए, और तांगे में भी यूज़ करते थे। उस टाइम पे बैल अगर किसी ने 50,000 की जोड़ी बेच दी, रुक्का पच जाता था। जैसे 50 लाख का जी घोड़ा बिक जाता, 1 करोड़ का घोड़ा। उस टाइम पहले बैल बिकते थे, बैलों का शौक था, तो उस टाइम से हमारे बैल जाते थे। लेकिन करीब करीब मेरे को 16 साल हो गया इसमें बकरी के काम में, जो यानी कि इस टाइम यहाँ पे कोई व्यापार नहीं करता था, जी। बाहर का आदमी कोई नहीं आता था। एक दीपक नायक डॉक्टर आता था, खाली उसको भी साल भर हुआ था आते हुए, और उसके बाद मैं आया। उस टाइम कुछ तो भी गोश्त के रेट थे 70 या 80 रुपये किलो जी केजी। तो उसके बाद में खटी के लोग क्या करते थे, इज्जड़ वालों को बेचारों को क्या करते थे, अगर 2000 की बकरी 500 रुपये में ले गए, 50-100 रुपये करके उसको देते थे। क्या करते, बहुत लोग परेशान थे। फिर उसके बाद हम आए, आने के बाद में जैसे अभी भाई 5000 की बकरी बिकी, 7 की बिकी, 10 की बिकी। आज बड़े पैमाने पे काम है, यानी कि इसने मंच को भी पीछे छोड़ दिया बकरी ने। ਫਿਰ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਫਿਰ भाई कारण का मतलब ये है, बीटल का दूध जो बताया है ऑल इंडिया के अंदर सबसे शुद्ध दूध बताया है। हर बीमारी के लिए इसी का दूध यूज़ होता है। दूसरी बात, दूध ज़्यादा देती है, रोज़ ज़्यादा करती है। उसके बाद बकरा इसका बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे कुर्बानी आती है, कुर्बानी के अंदर इसका 5-6 लाख रुपए का भी बकरा बिक जाता है। ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? बिक जाता है, अगर उसकी सेवा वैसी होए, हाइट वैसी होए बकरे की। अगर हम बोलते हैं कि भाई एक बकरा हमारा 20,000 का, ये 5 लाख का बिके या 2 लाख का या लाख का, तो नहीं बिकेगा। उस बकरे की वैसी सेवा करी जाएंगी जो बकरा 5 लाख का भी बिकता है। जी। बीटल बकरे में बहुत बकरे ऐसे हैं जो बिके हैं 5-6 लाख रुपए के बिके हैं। हाँ जी, और बिकते ही हैं। 1-1.5-2 लाख रुपए तो कॉमन हो गया है बीटल का बकरा भी, अभी कॉमन हो गया है। यानी कि अगर हम एक समझ लो 20% ऐसे बकरे बिक रहे हैं, 1.5 लाख के, 2 लाख के, 20% बकरे बिक रहे भी है अभी। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ? भाई भारत के अंदर तो करीब करीब ऑल इंडिया, पूरी ऑल इंडिया डिमांड है। फिर दूसरी बात, भारत को छोड़ के बाहर कंट्री में भी इसकी डिमांड है। जी। जैसे बांग्लादेश हो गया, आज बांग्लादेश वालों ने हमारी बीटल को इतना महंगा कर दिया, क्योंकि भाई ये सबसे नंबर 1 क्वालिटी है। इसको इतना महंगा कर दिया है कि वो जो बकरी यहाँ 50,000 रुपये का रेट है, या 40,000 के, 30,000 रुपये का रेट है, उन लोगों ने 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए की बकरी खरीद के पंजाब के अंदर बकरी महंगी कर दी है। जी। क्या कर दिए, तो लोगों को लालच यही लग गया, जब 1 लाख रुपए की किसी की बकरी बिक गई, 1.5 लाख की बिक गई, उसकी वजह से किसान गरीब मर जाता है। उसको भी 1.5 लाख की बकरी लेगा तो मर जाएगा। लेकिन मतलब ये बकरी का सही रेंज जो है तो 20,000 से चालू होता है। अच्छी बकरी 20,000 से लेके 40,000 रुपये तक की रेंज की बकरी लेनी चाहिए इंसान को बस। ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि उस रेंज की बकरी आपको क्या है, आपने 40,000 की बकरी ले ली, 1 साल में उसने, साल में 1.5 साल में 2-4 बच्चे होते हैं, 2 भी बच्चे रहे तो उतने के बच्चे बिक जाते हैं उसके 40,000 रुपये के। तो किसान नुकसान में बकरी फ्री हो जाती, फिर बकरी फ्री हो जाएंगी। उसके बाद में जितनी भी उसके सुए होंगे वो फ्री में ही रहेंगे, आपको वो मुनाफा होगा, मुनाफा ही होएगा जी। ठीक है जी। यानी कि 1 साल के अंदर आप 1 साल से 1.5 साल में आपका पूरा पेमेंट, आपने 5 लाख लगाओ, यानी आप
एक उदाहरण है, 10,000 रुपये आपने लगाए, वो 10,000 आपको साल भर के अंदर रिटर्न हो जाएंगे, उसके बाद में मुनाफा चलेगा, आप जितने दिन आप संभालोगे उसको। ਲੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਰ ਆ ਉਹ। हाँ जी, बोर अफ्रीकन बोर बकरा है जी, ਜੀ इम्पोर्ट बकरा है वो। ਇੰਪੋਰਟ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪੋर्ट ਹੈ ਆਪਣਾ? भाई ये बाहर से आया है, साउथ अफ्रीका से बकरा आया हुआ है। ये भाई को हमने गिफ्ट करे, सुखपाल भाई मेरे भाई है, दोस्त भी है और पार्टनर भी है। जी हाँ, मैंने सारा ठिया अभी यहाँ अमृतसर में बना लिया है, क्योंकि यहाँ से माल लोगों को आसानी भी होती है और टॉप क्वालिटी। लोग क्या बोलते हैं, अमृतसरी बकरी चाहिए, जी चाहे हम किसी कोने में जाके बकरी ले, जितनी ओरिजिनल बकरी अमृतसर को लग के है। अब पाकिस्तान की लाहौर की भीड़, यहाँ से लाहौर कितना है, बहुत हो गया, 30 किलोमीटर होएगा। सही गल है। बॉर्डर कितना, 30 किलोमीटर अमृतसर से, उसके बाद 40 किलोमीटर पकड़ लो। अपने इंडिया के अंदर 40, 50, 100 किलोमीटर बोले तो हम 2 व्हीलर से निकल जाते हैं। तो वही बकरी वहाँ पे 20-20, 30-30 लाख रुपए की है। कहाँ पे उन लोगों ने, यानी कि उतनी उसकी सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, 30 लीटर 35 लीटर, आप नेट पे देखते ही होंगे, 40 लीटर दूध दिया बकरी ने, 35 लीटर दूध दिया है। सही गल है। असल में हम लोगों ने इस नस्ल को संभाली नहीं है। अभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को शौक दिखाना है और दिखाना ये चीज़ क्या होती है, इसके लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ संभाल भी है और बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। जी जी ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ? भाई जी, बकरी कम से कम मैं 500 बकरी हर महीना पंजाब से बाहर भेज देता हूँ। जी 500 बकरी कम से कम, क्योंकि भाई ज़्यादा, क्योंकि मेरे को खुद खरीदना पड़ता है, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। खुद जाके मार्केट से माल खरीदी करता हूँ, उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र करके मैं भेज देता हूँ माल को। अभी तो मेरे को बहुत सुकून हो गया है। पहले क्या थी, मेरे पीछे बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत लोगों ने धोखे भी दिए हैं, बहुत लोगों के धोखे भी खाए हैं, और धोखे ही खा के अक्ल आती है। सही गल है। घी खा के, चना खा के अक्ल नहीं आती, धक्के खा के आਉਂਦੀ धक्के खा के आती है, बादाम खा के अकल नहीं आती। सही गल जब बंदा धक्के खाता है, जब उसको ठोकरें लगती है, जब वो बंदा कामयाब होता है। तो मैंने बहुत ठोकरें खाई है, बहुत लोगों ने बड़े बड़े मुझे चोट भी दी है, लेकिन मेरे भाई ऐसे मिले, हमारे दोस्त, अल्लाह का शुक्र है अभी 1-1.5 साल हो गया मिलके, लेकिन बहुत अच्छे मिले। उसकी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, यानी कि माल के रखने की परेशानी दूर हो गई, चारे की परेशानी दूर हो गई, ट्रांसपोर्ट की लेवल की, सब हर चीज़ की परेशानी दूर हो गई। ਜੀ जी ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ भाई जी, हम पूरा जंगल का माल इकट्ठा करते हैं। जैसे कि लुधियाना हो गया, सबसे ज़्यादा माल तो हमारा अमृतसर एरिया से ही इकट्ठा होता है। ठीक है जी। जैसे जलंधर हो गया, जलंधर एरिया में नंबर 1 बकरी पाई जाती है। चमकावर साहिब हो गया, एक नंबर 1 बकरी पाई जाती है। संगरूर जिले की भी अच्छी बकरी होती है। तो हम सारे जंगलों से सब जगह पहचाने, हर फील्ड में पहचाने, सब अपना माल इकट्ठा करते हैं और अपना यहाँ अमृतसर लाते हैं और यहीं से ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग अभी। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। जी ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਫਾਰਮ ਆ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਰੋ ਮਰਾਉਨੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿलिटी है ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ आने के कल लिए फिर इनकी कोई फ्लाइट भी है। भाई महाराष्ट्र से आना चाहे, बेंगलोर से महाराष्ट्र आना आना चाहे, है। केरला से आना चाहे, यहाँ से इतनी आसानी है आने के लिए क्या इंसान वहाँ से बैठो 2 घंटे में अमृतसर 5 मिनट में 5 से 10 मिनट में हमारे फार्म पे रहेगा। बाकी जब मैं दूसरी जगह रुकता था, जैसे रायकोट वगैरह रुकता था, लुधियाना रुकता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी दिल्ली उतरना, दिल्ली से फिर 4 से 7-8 घंटे लग जाते थे पहुंचने में। लेकिन अभी वो सब तकलीफ दूर हो गई, ऊपर वाले का शुक्र है। लेट हुई मगर बहुत आसान हो गया, क्योंकि घर से बैठता हूँ, एयरपोर्ट मेरे घर के पास में है पूना। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ? बस जी 2 घंटे में, 2-2.25 घंटे में इधर आ जाता। ਘੰਟੇ ਚ ਪੂਨੇ ਤੋਂ पुणे तो अमृतसर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। 2 घंटे जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, पहले 10-12 घंटे लग जाते थे पंजाब पहुंचने में। अगर फ्लाइट से भी आते थे, दिल्ली उतरना 7-8 घंटा वहाँ लग जाता था आने में, बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है।
ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? भाई साहब हम कलर तो करीब करीब सभी खरीदते हैं, लेकिन जो और महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका है उसकी डिमांड ब्लैक की ज़्यादा है। ਬਲੈਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ब्लैक ज़्यादा है, वो ब्लैक बकरी ज़्यादा मांगते हैं। अभी मेरे पास ऑर्डर है, महाराष्ट्र का पार्टी आई हुई है मेरे पास, इसमें मैंने उनको 70 एक बकरी एक देनी है और 60 पटिए एक देनी है उनको जी। ये बकरी देखो टॉप क्वालिटी की बीटल बकरी, गाभन है, 15 दिन में बच्चे दे देगी। 15 दिन में बच्चे दे हाँ जी, जो 4 से 5 लीटर दूध है बकरी के नीचे। 4-5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਊਗਾ ਜੀ। हाँ जी, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ये 38 हाइट है जी बकरी की। 38 ਹਾਈਟ ਆ जी ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? बस जी, इसे 30,000 रुपये पकड़ लो। 30,000 में हाँ जी ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? भाई जी, ऐसी सस्ती माल देंगे हम लोगों को, फसान देनी है बिल्कुल। जो माल के रेट है वही रेट देंगे माल। ਜੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। बस मंडी में जाके 50 बोल दे, 60 बोल दे, 40 बोल दे, लेकिन अभी देख लो हमारे अंदर, इसके अंदर 20,000 की भी बकरी है। देखो ये बड़ी बकरी दिख रही है आपको, 20,000 रुपये की है। वो बकरी खड़ी है, वो 20,000 रुपये की है। ये पट्टा 12,000, 14,000, 10,000 से शुरू लेके 14, 15,000, 20,000 रुपये, यानी कि बढ़िया बकरी 30,000 रुपये तक रेट है हमारे पास। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ? सबसे महंगी बकरी है तो बोलने को, जो बकरी लोग 1.5 लाख 2 लाख बोलते हैं, वो बकरी भी मेरे पास खड़ी है, लेकिन वो भी मैं 40 से 50,000 रुपये में दे दूंगा। जो लोग बोलते हैं ना 40 हाइट, 41 हाइट, वो बकरी भी मेरे पास खड़ी हुई है। जी। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल जायज़ मुनाफा लेते हैं, क्योंकि आज से कारोबार नहीं है। एक तो विश्वास के ऊपर, और जायज़ तरीके से जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको 10-10 साल से 15-15 साल हो गए हैं। ऐसे नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जो पार्टी मेरी आई है, आप उससे रूबरू हो जाओ, उससे पूछो आप कितने साल से जुड़े हुए हैं। सही बात है जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र में जो माल देता हूँ, कर्नाटका में देता हूँ, केरला में देता हूँ, 15-15 साल से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको कंटिन्यू हर महीने माल जाता है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ भाई, ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ? जैसे आप किसी को फार्म पे हमारे माल चाहिए, उसकी क्या नाम, आपको बुक करना पड़ेगा 15 दिन पहले माल। कितने पीस चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है तो 20 दिन महीना लेते हैं। 50 या 100 पीस है तो वो हम लोग लेते हैं 50% पैसा लेते हैं। उसके बाद वैक्सीन करके फार्म पे से माल देते हैं, बाकी पेमेंट यहाँ होता है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ऑल इंडिया अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं हम लोग, लेकिन कैसा है, जैसे 40 पीस 50 पीस, ठीक 1 या 2 पीस ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ਜੀ। ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ? ये 42 हाइट है जी इस बकरी की। 42। हाँ जी, ये बकरी की कीमत कहने को लोग 1.5 लाख बोल देते, 2 लाख बोल देते, लेकिन हमारे पास 60,000 रुपये कीमत है। 60,000 ਦੀ? हाँ जी। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇ ਹੋਏ? नहीं जी नहीं, देख लो 6 दांत होगी, अभी फ्रेश 8 करी होगी, बहुत हो गई, फ्रेश होगी एकदम ਠੀਕ ਹੈ बिल्कुल। ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਦੰਦ ਨੇਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। गाभन बकरी 3 महीने की, 3 मंथ की लोड है। ਠੀਕ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੀ? दूध दे देगी 6 लीटर जी। 6 ਲੀਟਰ? हाँ जी, वो तो सेवा के ऊपर है, जितनी तुम मेहनत करोगे जी। उतना ही फल मिलेगा। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ? भाई हमारे पास 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर की बकरियां हैं फिलहाल। ठीक है। हाँ जी, लोग अगर कहें 10 लीटर की बकरी चाहिए, वो भी बकरी मेरे पास है, वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन सेवा के ऊपर। हमारे पास 5 लीटर देगी, आप सेवा करोगे, जैसा उसको दाना खिलाएंगे, चना खिलाएंगे और भरडा अच्छा खिलाएंगे, खल्ली खिलाएंगे, वैसा ही दूध देंगी बकरी। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਰ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ? हाँ जी, छोटे भी दे देंगे। छोटे भी देते। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਕ ਖੱਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, जैसे 3,000 रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक बच्चा मिल जाता है। ठीक है जी। जी, बच्चे भी दिखा दो, वो बच्चे भी हैं मेरे पास, लो बच्चे बकरी भी है, सब चीज़ दिखा दो। आप बड़ी बकरी भी देख लो, आप आगे बड़ी बकरी भी दिखा देता और ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਇਹ ਬੋਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਇੰਪੋर्ट है। ये इम्पोर्ट बोर है जी। जी। देख लो, इम्पोर्ट की खासियत ये रहती है, इसकी झालर देखो, वेट देखो, इसकी मांडी देखो। इम्पोर्ट की खासियत ये है, सींग से लेके पीछे तक एकदम गोल होना चाहिए, झालर होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए। ये इम्पोर्ट बोर बोला जाता है। कितनी के ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਇਹ? ये होगा जी कम से कम 1.5 से पौने 2 साल का बकरा है अभी। ठीक है जी। कीमत की रहती है वैसे ਇਹਦੀ? कीमत तो भाई लोग कितने का 7 लाख का भी बेच रहे हैं, 8 लाख का भी बेच रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत 50,000 से चालू होती है। अभी फिलहाल ये कम से कम 4 से 5 पेटी का बोर है। ठीक है जी। हाँ जी। वेट कितना का होगा ਇਹਦਾ ਹੁਣ? वेट होगा जी 120 किलो। 120 किलो? हाँ जी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ तो कोई बोर मंगे भी ਆਪਾਂ बोर भी दे देंगे। हाँ जी, बोर भी दे देंगे। बोर के बच्चे भी तैयार कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। बाहर से मंगाए हैं बोर, हमने बोर की फीमेल भी मंगाई, इंपोर्ट करे हैं, जी। तो थोड़े दिन के बाद बच्चे भी देने चालू कर देंगे हम लोग। ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ हाँ जी, कजली पेड़ है सारी। ਕਜਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ? हाँ जी, कजली ਕਜਲੀ ਭੇਡ ਵੀ ਹੈਗੀ। कजली पेड़ है, जमुना परी है।
ये बकरी 6 लीटर दूध की है जी, अभी फिलहाल 6 लीटर दूध है बकरी के नीचे, इसके 5 नीचे से 6 लीटर दूध है। हाँ जी, बीटल देखो जो पाकिस्तान वाले रखते हैं यही बकरी रहती है वो जी। हाँ, बस हमारी सेवा कट है, जितनी सेवा करोगे उतना ही फायदा उठाओगे। सही गल है, हाँ जी, सेवा सिर ते सेवा के ऊपर ही है सर। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਜਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? भाई जी कीमत इनकी कोई कीमत नहीं है, शौक की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हमारे पास इसे 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक पेड़ मिल जाती है, अच्छी कजली अच्छी क्वालिटी की। अच्छी क्वालिटी हाँ जी, पेड़ का पालने का फायदा बहुत है। वो एक जमुना परी है उसके अंदर, छोटू जरा जमुना परी पढ़ के दिखाओ, 2 दांत बच्ची है, अभी गाभन है वो वाली, उसको जमुना परी बोलते हैं, इनको सबको कजली बोलते हैं। देखो वो आई है वो जमुना परी, हाँ ये जमुना परी ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਮਨਾ ਜਮਨਾਪੁਰੀ ਹੈ। जमुना परी ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ हाँ जी, गाभन है अभी। गाभिन है? हाँ जी, 2 दांत है और गाभन है अभी। 2 दांत गाभिन है। हाँ जी, ठीक है जी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ तो भाई भेडा मंगे कोई भेडा भी दे देंगे। पेड़ा भी दे देंगे भाई, पेड़ों में फ़ायदा बहुत है भाई, एक बार पैसा लगा लो फिर बाद में कमाई, 1 साल में पूरा रिटर्न आ जाता है पेड़ में पैसा, और बाकी बाद में कमाई चालू है, चाहे 1 से 2 पीढ़ी खाते रहे, इतनी कमाई है पेड़ में तो। भेड़ चों हाँ जी, कहने तो भाव जे 10 भेडा रख ले फिर तो हर महीने कमाई हो। 20 पेड़ रख लो, 20 बच्चे हो गए, 6 महीने में 20 कितने हो गए, 40 बच्चे हो गए। हाँ जी, 20 घर को रखते जाओ, बाकी बेचते जाओ, कमाई चालू है। सही गल है। हाँ जी, बीमारी भी घट आउंदी वो हिंदी ही नहीं, चाहे कबाड़ा डाल दो खाने के लिए, बचा हुआ डाल दो, मंडी का लाके कचरा डाल दो, सब खा के तैयार, खुश रहती है बस, ठीक है बीमार नहीं होती, कुछ नहीं होती। साल में 2 बार बाल उतारना बस, ठीक है। ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ वो कोई सा भी मौसम रहने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਲੋ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਜੋ ਆਜੋ ਇਧਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਵੀਰੇ। हाँ जी, 10 दिन गले। ਲੋ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਸੌਖਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 100 ਨਗ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 5 ਕੈਬਨ ਇਸ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਆ, 5 ਹੀ ਉਹਦੇ, 500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, 500 ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਰੇ ਦਾ ਨੀਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਲਸਣ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਲਸਣ ਦਾ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਛਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਊਟਡੋਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਆ, ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂ, ਡੇਲੀ। ਲਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਗ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? अभी फिलहाल कोई 250 से 300 नग पड़े हुए हैं अभी फिलहाल, कुछ माल बाहर पड़ा हुआ है जो उठाए नहीं हमने, अभी 300 350 नग होंगे मेरे हिसाब से ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ सब तरह का माल, जिस तरह का भी कोई डिमांड करता है उसी तरह का माल मिलता है हमारे पास। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਆਪਾਂ बड़े ਬੱਕਰੇ ਦਿਖਾਈਏ ਹੁਣ। हाँ जी, बड़े ਆ ਜਾਓ बड़े ਬੱਕਰੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ये माल कल ही आया है पूरा। कुछ बकरे बाहर हैं, कुछ बकरे यहाँ पे हैं बड़े, और बाकी बाहर पड़े हुए हैं बकरे। बाकी आज बकरे 10 से 15 बकरे आज लोड हो गए, बड़े बड़े जो बिक्री हो गए, आज सेल हो गए। 15 बकरे बड़े बड़े जो 1 कुंटल के थे वो आज सेल हो गए 15 बकरे। बाकी ये देखो 1 कुंटल के बकरे हैं, ये 6 दांत पे 1 कुंटल बकरे है। ये हुआ शेरा हुआ,
ये सब बड़े 80 किलो के आगे 1 कुंटल के बकरे हैं ये। क्विंटल के। हाँ जी। ठीक है, खस्सी भी खरीदते हैं फिर? हाँ जी, खस्सी जैसा ऑर्डर मिलता है उसी तरीके का माल देते हैं। सही गल, वो तो ऑर्डर ते रहना, ऑर्डर के ऊपर है, किसी ने खस्सी मांगी खस्सी भी देते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ। ਲੈ ਵੀਰੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਊਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਆਪਾਂ ਬੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਊੜਾ ਬੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਤੀ ਬੋਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 24 ਕੁ ਬੋਤੀ ਬੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ BSF ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰ BSF ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਤੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 11 ਬੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 11 ਬੋਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 150 ਬੋਤੀ ਬੋਤਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ BSF ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਇਹ BSF ਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲਓ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਨਾ। हाँ जी। ਦਿਖਾਇਓ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ। देखो ये सब कुर्बानी के बकरे भाई, वो गंगा परी है, ये सब पंजाबी है। अभी इनकी तैयारी होगी, यानी कि अभी हमारा अगले महीने रमज़ान है, रमज़ान से तैयारी होती है। माशाल्लाह ये एक 1.25 कुंटल के 1.5 कुंटल के बकरे हो जाते हैं। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜਨ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਈ? अभी फिलहाल 75, 80, 90 किलो तक के बकरे हैं अभी फिलहाल। अभी इनकी कोई तैयारी नहीं है, अगले महीने से इनकी तैयारी चालू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये 130, 140 किलो, 150 किलो तक वेट पहुंच जाता ਬੱਕਰੇ है। ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ हाँ ਜੀ? जी, बकरे तैयार कर दे, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बकरों की तैयारी करते हैं। फिर बकरा ईद पे हमें कम से कम 1000 से 1500 बकरा देना पड़ता है, जो मेरे खुद घर के अंदर पूना के घर के पास ही मेरा कम से कम 1500 बकरा बिकता है ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ? हाँ जी, एक ही इसमें बकरा ईद में, ਬਕਰੀਦ ਚ? बकरा ईद में 15 दिन के अंदर अंदर 1500 बकरा बेच देता हूँ मैं। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। हाँ जी। ਪੂਰੇ ਕਿੰਗ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 30 ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ये ਕਾਲੇ ब्रीडिंग का बकरा है भाई, इसकी 43 हाइट है, अभी 6 दांत बकरा है। ये ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, ब्रीडिंग के हाँ, लिए। अभी ये जंगल से नया ही लाए हैं इसको। ਇਹ कितनी कीमत होगा भाई? भाई ये इसकी 35-1000 रुपये कीमत पड़ लो। 35,000 ਦਾ ਹੈ। लोग बोलने को इसकी लाख रुपए कीमत बोलते हैं, ਹੂੰ। तो यहाँ ऐसा कोई फंसा हुआ धंधा नहीं है। यहाँ से सिर्फ जो माल है उसी की कीमत लगेगी। लेंथ भी बहुत है जी। लेंथ बहुत है, दूसरे लोग इसकी लाख कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख बोल देंगे, नहीं 35,000 रुपये ऑर्डर नहीं हमारी। ठीक है जी, 35,000। क्योंकि कोई फंसना नहीं चाहिए इसी सभी भाइयों को, किसानों को, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। सही गल है। किसी को लूट के कोई फायदा थोड़ा ही होने वाला भाई है जी। जो कीमत सही है वही कीमत बताएंगे। उधर दिखाते हैं ब्रीडिंग के बकरे, आ जाओ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਨਾ। किसी भाई को बच्चे चाहिए, ये बच्चे 3,000 रुपये से चालू होते हैं, 6,000, 7,000, 5,000, 4,000 ये रेंज के बच्चे हैं ये। ठीक है, बाकी जिस तरह की क्वालिटी वो है वो जैसी क्वालिटी वैसे ही रेट है। फिर भी ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 से चालू होता है, 5 से 6,000 रुपये तक का बच्चा है। ठीक है, आप देख लो। ਲਓ ਵੀਰੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾਂਗੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੋਕ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਲਓ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਤੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ये ਡਿਮਾਂਡ 4 दांत बकरा है। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? हाँ ये लोया, ਭਾਈ 4 ਦੰਦ ਆ। 4 ਦੰਦ ਹੈ। वेट रहेगा, बॉडी वेट रहेगा इसका 65 से 70 किलो। 65 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਹੈ। हाँ जी, ठीक है। हाल तो फिर काफी हाइट करूंगा और ता बहुत हाइट करेगा। अभी 42 हाइट है, 42 है, 45 तक जाएगा। 45 तक जाऊगा। हाँ जी। ठीक है जी। ये कितनी की डिमांड होगा अपने भाई 30,000 रुपये। कमाल दी गल है, ये इतने सस्ता। भाई देखो जो माल है वही रेट लेंगे, ज़्यादा रेट नहीं लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है ठीक है कि हमारे रिजनेबल रेट ही लिए जाते हैं। कितनी अच्छी क्वालिटी रहने तो ऐसा नहीं कि लोगों को देख के कि भाई ये पार्टी बड़ी है, उसके हिसाब से ही पैसा लिया। एक आदांत बच्चा दिखाओ जरा, ये आदांत बच्चा, इधर इधर इधर, ये बहुत बड़ा बकरे का बच्चा है।
ये बहुत बड़े बकरे का बच्चा है। देखो ये इसकी हाइट, अभी ये खीरा बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है। ये महाराष्ट्र वालों को दिया है 40,000 रुपये का। वेट भी होएगा इसका 50 किलो, लेकिन टॉप क्वालिटी का। इसका बाप जो है वो 3 लाख रुपए लुक चुके, सामने वाला दे रहा नहीं इसका बाप। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? इसकी 7 महीने 7 मंथ का बच्चा है। 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। हाँ जी, नहीं खुराक की बात नहीं है, इसकी लेंथ हाइट बहुत जाएंगी बच्चे की, 48 तक हाइट जाएंगी इस बच्चे की। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ पता ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, इसका फादर पता है, बहुत अच्छा बकरा है। 3 लाख रुपए दे रहा था मैं, उसने दिया नहीं ये बकरे का। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ इधर ये प्योर बरबरा है। देखो इसको बरबरा बोलते हैं। ये भी माल मिलता है, ऑर्डर के ऊपर देते हैं ब्रीडिंग के। ये ब्रीडिंग का बच्चा है, अगर किसी को चाहिए तो इसका ऑर्डर भी लेते हैं हम लोग। बरबरी का नेक के ऊपर से लेते हैं और देते भी है। लेके 7-8 हज़ार रुपए से 14-15 हज़ार रुपए तक बरबरी मिल जाती है अच्छी। ठीक है जी। और ब्रीडर सब ब्रीडर है। देखो कान में इनके टैग लगे हुए, सब पूरा महाराष्ट्र जाने वाला माल है ये। आज ये लोड हो जाएगा। और इसको बैंटम बोलते हैं, जिसको हम पंजाबी भाषा में पहाड़ी बोल देते हैं। ये बैंटम है। ਬੈਂਟਮ ਹੈ ਛੋਟੀ। लो वीरो बैंटम दिखाओ तरसेम भाई इधरों आने ये, हाँ जी, ये इधर का बैंटम है, आसाम बैंटम बोलते हैं। एक आता है कलकत्ता का बैंटम। देखो ये वाला, ये देखो ऐसे ये आसाम का बैंटम है। और जो कलकत्ता का वाइट बैंटम आता है वो। ठीक है जी। आ किहड़ा है? हाँ भी बैंटम ही है। अच्छा ये भी बैंटम है। हाँ जी, ठीक है जी। फिर तो सारी क्वालिटियां रख रखी ने सारी हाँ जी, ब्रीडां। करीब करीब सभी क्वालिटी और इंशाल्लाह सब आ ही जाएंगे। और जो भी क्वालिटी है ना, जिंग वगैरह, विलायती मेंढे, मरीनो, दुम्बे, हर चीज़ इंशाल्लाह अगले महीने सब पूरी इधर हो जाएंगे जी। ठीक है जी। सो ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਬਾਬਤ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया जो आप यहाँ तक हमारे पास पहुँचे। ये प्यार मोहब्बत की वो है जो आप इतनी दूर से चलते हुए हमारे पास आए। एक कहने पे आप आ गए। भाई सब किसान भाइयों से यही कहना है, कुछ पंजाबी में तो भाई साहब बोलेंगे, मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता कि भाई कोई भी किसान भाई बकरी का फार्म करना चाहे, बकरे का छोटा करे या बड़े पैमाने पे करे, पहले उसका तजर्बा ले, उसके सही रेट निकाले, फिर उसके बाद माल खरीदे। जिस भाई को अगर ज़रूरत है यहाँ के मिले, उसकी ट्रेडिंग भी दी जाएगी, यहाँ पे बताया भी जाएगा कि भाई किस तरीके से पालन होता है और किस तरीके से बकरी संभाली जाती है, किस तरीके से इसके डबल किए जाते हैं, वो सब चीज़ सिखाई जाएगी। और रही दूसरी बात ये, अगर सही रेट में भी माल मिलेगा उनको यहाँ पे, और अगर उसको खुद लेना चाहे आदमी पहुँचे और अच्छे से पहले 2-4 आदमी से मालूमात करे जब बकरी ले। ऐसा नहीं कि हमें शौक करना है या फार्म करना है, उठा 50,000 की बकरी ले ली, लाख की बकरी ले ली, बाद में पता है बंदा फंस गया, उतनी कैपेसिटी नहीं थी, ज़मीन बेची, 10 लाख की बकरी डाल दी, फिर ज़मीन बेच के पैसे दिए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कि भाई थोड़ा बड़ों से मशवरा लो, दूसरे लोगों से मशवरा लो, भाई बकरी में क्या है क्या नहीं है, फिर वो तजर्बा लेके फिर उसके बाद काम करो। ठीक है जी। जी ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਭੇਤ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਗੈਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਗਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੁਚੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਦਿਆਂ 500-550 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।